Great. Namaskar, Ramveer ji. We will start with the presentation. The format will be where I will start giving you an introduction about MPF, and then we will go into a discussion with our esteemed guest today. So as we know, we are Maharashtra Professional Forum in Doha, Qatar. We are an associated organization to the Indian Business and Professional Council, IBPC, under the aegis of Embassy of India, Doha, Qatar. I would now request our President, Mr. Anand Nadgirji, to take up the mission for MPF, please. थैंक यू अविनाश. रामवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका. Also welcome all the guests and visitors who are attending the meeting. Thank you very much for your time. So vision of our forum, that is Maharashtra Professional Forum Qatar, is to help 100,000 working professionals achieve their career growth using the power of networking, and we aim to achieve this growth through our 3C model, that is connection, communication, and creation. Yes. Next slide. Just to add on to that, when we say connection, communication, and creation, it is about the network, and we say in MPF that our network is our net worth. And if we can communicate this to the network outside, and if we can create amazing things as we do week on week as a part of MPF, we are closer towards achieving our mission of helping 100,000 working professionals. I'll move on to the next slide. Anandji, you want to continue or should I? Yeah. Thank you, Avinash. So what we do about us, we come together to share employment opportunities in Qatar, Maharashtra, India, and also globally. We also share and support all business referrals among the members, helping them to reach the decision-making table towards conclusion, and also support product sourcing locally as well as globally. For members or as an employee or entrepreneur, alongside supporting our members to grow their professional career. And we are doing all these activities since 2017. So let me now introduce you to our managing committee. As we have just introduced Anand Nadgir as our president, we have Abhijit Biradar on the call, who is the vice president. I am the general secretary. We have Ashish Rahalkar on the call, who is the treasurer. We have Chandrasekhar Angadi, who is the joint secretary. Devan Devrukkar, Abhijit Kualekar, Satish Sabade, and Mohan Patil. So this is our managing committee. And basically our focus areas are primarily into four major things. We are looking forward for creating career growth opportunities through the network that we have built through this MPF. We help promoting you and your business through the referrals within our connection locally and within our connections globally. We facilitate global professional and business event participation. We work very closely with the Embassy of India and IBPC to create and support global event participation through our MPF forum. And we also help you start, sustain, and scale your business through the multiple entrepreneurs, professionals that we have within our network, which are really creating humongous value
for helping each other to become a better version of themselves. As we mentioned, the 3C value is connect, communicate, and create. We believe that if we can connect well, not only on the outside, but within, we are able to communicate better. And when we are able to communicate how we connect with each other, we are able to create humongous value for the entire society. We hold this bi-weekly meetings. We used to do this at 9 o'clock. We have just improved the time to 8:30. And these bi-weekly meetings are for business opportunities, mentoring. We do multiple coaching sessions. We are a networking platform. And I urge all of you, those who have not yet enrolled themselves on our networking platform, please do so. I will share the details in the next few slides. We do personal growth sessions. These are networking sessions through group networking and also one-on-one. And we also provide employment opportunities. We have a WhatsApp group, a closed WhatsApp group on which we support each other with multiple employment opportunities. Most of the members here are very senior, at very senior positions in their organizations. And whenever there are opportunities that are being available within their organization, we put it on this closed WhatsApp group and support each other to get those opportunities, especially for the professionals. We have been very proud to say that so far we have entertained 1850 plus, 1,850 plus guest members who have attended our sessions. We have 65 registered members, and this is a growing community. So we would, as I said earlier, I would urge each one of you, those who have not yet participated or enrolled in our sessions, please do that. Enroll yourself on the professional platform. We have had multiple guest talks on MPF Qatar, and this range is a humongous range. It's a wide range of professionals throughout multiple industries, throughout multiple expertise. We have had financial advisors, startup advisors, export advisors, life coaches, legal advisors, multiple industrialists, science people who have built science-based business models. We have had scientists, builders, sales and marketing coaches, interior designers, consultants, psychiatrists, broadcast specialists, hypnosis specialists, wellness coaches, life coaches, tax advisors. We even had a scientist from Australia who was up with us at 2 a.m. their local time for sharing his expertise and sharing his knowledge. And we are proud to have such amazing guests on our events time and again. This is the membership process that we would like you to go through. Please, we will share the link shortly in the chat. There is an annual membership fee of 100 riyals, and you can also join our social media platforms, wherein we share all our updates regularly. So please make sure that you join our LinkedIn platform or Facebook group. We are on WhatsApp and Insta. So please do that. And without much ado, I would like you to know what's in it for you. What you would gain from becoming a member with MPF is humongous business opportunities. You will receive mentoring and coaching opportunities with different experts, one-on-one and within groups. You have this networking platform where everybody comes together and networks on a regular basis. We have career growth sessions and, of course, employment opportunities for career and employment growth. Let's move on to our expert talk today. Again, we have such an amazing personality with us. Without much ado,
we will be inviting our guest speaker. But before that, a few ground rules that I would like to share. Once the session starts, all the participants are requested to turn off their cameras so that we can have a one-on-one session with the guest. We will view the screen in the speaker view. We will post all our questions in the chat box, and then depending on how the session goes, this is going to be an interactive session, and we will have participants to ask. We will ask them to unmute and ask their questions at an appropriate time. So let me take this opportunity of inviting our guest for today, Mr. We call him the pond man, Mr. Ramveer Tanwar. Let's welcome with a round of virtual applause. So welcome Ramveer ji, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. I will hand over this to Abhijit Kuvalekar for taking this session with our guest today. Thank you, Avinash. Namaskar, Suprabhat, everyone. Welcome, Ramveer ji, to MPF Qatar. It's an honor to have you with us, a man with a cause. As they fondly call you in India, Jala Rakshak, or Pond Man of India. He has been appreciated by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. He and his team have revived more than 80 ponds across the country. An acclaimed TEDx speaker, United Nations has recognized the selfless work by giving a grant of around $10,000 towards water conservation. A very humble, simple engineer who has put his life for the cause of our nation, for nature, for environment. Please welcome again our guest speaker today, Ramveer ji. Namaskar again. Now, Ramveer ji, if I can have your permission, can I start with putting up some few questions to you? Yes, please. Yes. Thank you, ji. So, Ramveer ji, as everyone is curious to know, what is Ramveer ji? I mean, what is he? Like when you were a child, how you were in your teens? We want to know a bit more about you as a person before we move into the actual good cause which you have done. Ramveer ji, please. Thank you. Thank you so much, Mr. Abhijat ji and Avinash ji, Mr. Anand, for such beautiful introduction, wonderful introduction, I'd like to say. And thank you so much after seeing your introduction about your organization. I'm really feeling proud to be the guest for today. So thank you again for giving me this golden opportunity. So जैसा अभिजात जी ने पूछा कि who is Ramveer Tanwar, मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव है डाढ़ा. तो डाढ़ा गांव से मैं बिलोंग करता हूं. वहीं पे मेरा जन्म भी हुआ है और वहीं पे मैं अभी भी रहता हूं. और गांव के सरकारी स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की है. और मैं अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटा हूं और अपने परिवार का पहला सदस्य हूं जिसने 10th क्लास के बाद भी पढ़ाई की है. एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन हु वेंट टू द कॉलेज. और I'm the first person who left the job after getting a job in MNC. So who left the job for this work to clean our ponds and lakes. So this is my beautiful introduction. And मैं कॉलेज टाइम से इस एक्टिविटी में हूँ और कॉलेज डेज में एंड ऑफिस डेज में I was doing as a volunteer, but right now I'm full time and we are working in 6 states in India. We are a good team. And right now I'm in Surendranagar district of Gujarat,
और अभी मैं यहाँ आज अभी तालाब पे ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पूरे गांव वालों के साथ। और मैंने स्पेशल इस कॉल के लिए आई हैव टेकन परमिशन टू द गवर्नमेंट स्कूल टू यूज देयर वन रूम फॉर दिस कॉल। थैंक यू। Excellent, excellent. Nice to know, रामवीर जी। रामवीर जी, आपको पॉन्ड मैन ऑफ भारत कहा जाता है, तो ये कहने का व्हाट वाज द ट्रिगर विच मेड यू अ पॉन्ड मैन? क्योंकि हर आदमी को कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिससे वो अपना जीवन का लक्ष्य साधता है, तो आपके लिए क्या था वो? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तो लाइक इट इज वेल नोन और पॉपुलर विथ पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया। बट ये जब मैं अपने एमएनसी में जॉब करता था तो तब मेरे जो कलीग्स थे दे वर यूजिंग दिस नेम इन लाइक जोकिंगली, है ना। वो मजाक मजाक में ये बात कहा करते थे बिकॉज मैं ऑफिस टाइम में तालाबों की बात करता रहता था। और तो उस टाइम पे वो मजाक में कहते थे कि तुम यहाँ सैलरी है यहाँ से लेते हो और यहाँ बैठ के तालाबों की बात करते हो, तो यू शुड बी नेम्ड पॉन्ड मैन, है ना, इंस्टेड इंजीनियर। तो बट फिर एक बार मीडिया वालों ने पूछा कि आपको क्या हम आपके नाम के अलावा हम किस नाम से जाना जाना चाहिए, तो आई सेड कि मेरा नाम ही काफी है। और बट मेरे दोस्त मुझे मजाक में कई बार ये कहते हैं, so they used this name and it was like very surprisingly one day in October 2021 our honorable prime minister used the same name in Mann Ki Baat in his program. So he said that he should be known as Pond Man. So after that it became very popular and I'm known as a Pond Man. That was the story behind the Pond Man. Great, great, great. Acclaimed and appreciated by Narendra Modi ji in itself is an achievement for a person, because we are so blessed to have a prime minister like him. Ramveer ji, can you educate, inform and give more information जो आपका ये कार्य है उसके बारे में हमें बताएंगे कि विस्तृत what is being done, आप क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी देंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए उसके लिए मैं आपसे परमिशन चाहूंगा कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं। और ये आई होप कि मेरा स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है। हाँ, थैंक यू। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि दिस इज द लोगो ऑफ पॉन्ड मैन एंड ये से अर्थ मेरी एनजीओ का नाम है। तो although it is known by Pond Man, but Pond Man is the like key word for our organization. So हम इसमें दो काम करते हैं। एक जो हमारे अगर इंडिया क्या है वो एक तरह से तालाबों का देश है ना। यहाँ पे आप किसी भी गांव में जाएंगे तो एक किसी भी गांव की इमेजिनेशन परिकल्पना करना अधूरा है जब तक कि उसमें किसी एक सुंदर सी वाटर बॉडी को हम ना जोड़ दें। तो ये एक इंडिया की खूबसूरती है कि हर गांव में एक सुंदर वाटर बॉडी आपको देखने को मिलेगी। तो वही, लेकिन टाइम के साथ साथ और स्पेशली ऑन द नेम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी टर्न आवर ब्यूटीफुल वाटर बॉडीज इनटू द लैंडफिल साइट्स। आप अगर खुद भी अगर इस बार गांव जाएंगे या अगर आप रेगुलरली अपने किसी गांव में जाते हैं जहां से आप बिलोंग करते हैं तो लाइक आपकी भी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई होंगी तालाब के साथ। बट अभी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का अभी भी वो वाटर बॉडी अच्छी हो, बट आई कैन से श्योरली 50% से ज्यादा लोगों के जो गांव की वाटर बॉडीज है वो उस कंडीशन में अब नहीं रही होंगी। either they look like a landfill site, either they look like a sewage tank, but they don't look like a pond, beautiful pond or lake. तो हमारा काम है जो पॉन्ड थे जो अभी किसी और शेप में आ गए हैं और they are not fulfilling their basic purposes, so we are just restoring in a way कि वो अपना जो बेसिक पर्पज है उसको फुलफिल कर सके। That's the only aim for this cause.
तो अगर आप अपने गांव के या कहीं पे भी इंडिया में वाटर बॉडीज को देखेंगे तो आपको स्पेशली ये प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स है कुछ हमारे वाटर बॉडीज के साथ। आइदर दे आर फुल ऑफ द वाटर हायसिंथ, हम यहाँ पे उसको जलकुंभी भी कहते हैं, फोक समुद्र भी कहते हैं, बहुत सारे। आइदर दे आर फुल ऑफ डकवीड्स, है ना, और या फिर गार्बेज से पूरा भरी हुई है, उसके ऊपर पानी की बजाय गार्बेज दिखता है। उनका पिछले 50 साल से कभी डिसिल्टिंग नहीं हुआ है, तो उनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था वो है ना, वो एक प्रॉब्लम है। या किसी भी वाटर बॉडी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ दैट वाटर बॉडी। तो उसको वो या तो लोगों ने एंक्रोचमेंट कर लिया है, या फिर वहां पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, पास से कोई सड़क निकल गई है, कोई सोसाइटी बन गई है, या उसमें फिर गंदा पानी जोड़ दिया गया है गांव का या शहर का। तो दीज आर द बेसिक रीजंस कि हमारी जो वाटर नेचुरल या ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, और वो कहीं ना कहीं मर गई है। तो हमारा काम है उन मरी हुई वाटर बॉडीज के लिए अपना बेस्ट कोशिश करना कि वो फिर से रिस्टोर होके अपना बेसिक पर्पज फुलफिल कर सके। लास्ट मॉनसून में हमने दो चीजें देखी। एक ये जो लेफ्ट वाली न्यूज की पिक्चर है दैट इज फ्रॉम द बेंगलोर सिटी। बेंगलोर और गुड़गांव ये कुछ ऐसी सिटी है जो मेट्रो सिटी इंडिया में कही जाती है, मोस्ट डेवलप्ड सिटी कही जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली गुड़गांव और बेंगलोर दोनों सिटी ऐसी हैं जहां पे एक नया इंडिया में एक नया सिनेरियो निकल के आया है, नया वर्ड निकल के आया है दैट इज कॉल्ड अर्बन फ्लडिंग। क्योंकि हर बार बारिश में दोनों शहर में बिल्कुल डूब जाते हैं वो, और 2-3 दिन के लिए पूरा चौक हो जाते हैं। उसमें अभी इस बार जब मॉनसून आया तो बेंगलोर का वो एरिया सबसे ज्यादा फ्लडेड था, जिसमें बेंगलोर में कहा जाता है कि सबसे रईस लोग या सबसे एलिट क्लास के लोग वहां पे रहते हैं। तो वहां पे लोगों को ट्रैक्टर में भर भर के बाहर निकालना पड़ा। और जब उसके बाद जो रिसर्च हुआ, द गवर्नमेंट कंडक्टेड द रिसर्च ऑल द थिंग्स, द रिजल्ट वाज दैट कि जो वहां की आसपास की ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी, नेचुरल वाटर बॉडीज थी, these water bodies have lost the water holding capacity। अगर कोई 10 लाख लीटर पहले किसी में पानी आता था तो उसमें अभी 2 लाख लीटर पानी आता है सिर्फ, बिकॉज एंक्रोचमेंट, बिकॉज द सिल्टेशन, बिकॉज द गार्बेज फिलिंग। वो एक रीजन निकल के आया। अगेन दूसरा गवर्नमेंट का स्टडी है, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि 40% ऑफ इंडियंस विल नो हैव एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, है ना, बाय 2030। तो वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिजल्ट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्टडीज है। दोनों को अगर हम बहुत क्लोजली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का प्रॉब्लम है वाटर बॉडीज, है ना, कि वाटर बॉडीज को खत्म होने से की प्रॉब्लम है, वाटर बॉडीज के खत्म होने से, उनके ऊपर एंक्रोचमेंट होने से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। और जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं तो दोनों का सॉल्यूशन है वाटर बॉडीज, है ना, कि अगर उनको हम फिर से फोकस करें, उनको आप फिर से रिवाइव करें, उनका प्रोटेक्शन करें, उनका रेस्पेक्ट करें, दे कैन सॉल्व अवर बोथ प्रॉब्लम्स। तो एक तरफ दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तरफ जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग है, एक इंडिया के एक कंट्री में उसी टाइम पे अर्बन फ्लडिंग होती है, उसी तरह दूसरे एरिया में वाटर स्ट्रेस होता है, वाटर क्राइसिस होता है, जबकि दोनों एक दूसरे का सॉल्यूशन हो सकते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। अभी ये एक मैं कुछ वाटर बॉडीज का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक वाटर बॉडी है, ये दिल्ली से मात्र 1 आवर की डिस्टेंस पे एक वेव सिटी है। तो वेव सिटी का एक ये वाटर बॉडी है। अगर मैंने जब गांव में विजिट किया, गांव वालों के जो अबव द 60 इयर्स के जो लोग थे रेजिडेंट से, उनसे बात किया, दे टोल्ड कि उन लोगों ने इसमें कभी तैरना सीखा था, है ना, वो इसमें क्रिस्टल क्लियर पानी रहता था और उन्होंने ही इसी में वाटर बॉडीज की वजह से उनको तैरना आता है। बट जैसे धीरे धीरे अर्बनाइजेशन उनके गांव की तरफ बढ़ने लगा, वो वाटर बॉडी इस कंडीशन में आती चली गई। और एज पर लाइक सैड थिंग्स कि आसपास की सारी बिल्डिंग्स के पास ग्रीन सर्टिफिकेट है, ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट है बिल्डर्स के पास, बट फिर भी आसपास की जो लोकल वाटर ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उनकी ये कंडीशन आ गई है, नो वन टेक केयर ऑफ दिस वाटर बॉडीज। तो हमारा फोकस है इस तरह की वाटर बॉडीज को फिर से रिस्टोर करना,
वॉलेंटियरली, कॉर्पोरेट की सपोर्ट से, गवर्नमेंट की सपोर्ट से और अपने एफर्ट से। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये भी एक एनसीआर की वाटर बॉडी है कॉल्ड नाइफल पॉन्ड। आप इसमें दो प्रॉब्लम आप इसमें देख सकते हैं और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है ना। मे बी इंडिया की 20 to 30% वाटर बॉडीज द सेम प्रॉब्लम। आप इसमें दो चीजें देख सकते हैं, वाटर हायसिंथ जो कि बहुत पुरानी होने के बावजूद इसका कलर वैसा हो गया है ग्रे कलर का, प्लस द गार्बेज। गार्बेज आप सोच रहे होंगे गार्बेज इस तरफ ही क्यों है, उस तरफ क्यों नहीं है। उसका रीजन ये है, ये एक इंडिकेटर है कि इस तरफ से एक रोड जाता है। जब भी हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, जॉब के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, तो हमारे हाथ में एक थैला होता है और उसको हम यहाँ पे फेंकते हुए जाते हैं। कई बार हमारे घर वाले हमको बोलते हैं कि रास्ते में कोई भी वाटर बॉडी दिखे तो आप उसको फेंकते हुए जाते। हम समझते हैं कि ये वाटर बॉडीज एक सिंक हॉल है, आप उसमें कुछ भी फेंकेंगे वो गायब हो जाए। बट जब हम रिस्टोर करते हैं, ऊपर की लेयर हटाते हैं गार्बेज की, उसका पानी डी वाटर करते हैं, निकालते हैं, देन वी सी कि पानी के नीचे बेस लेयर पे एक पूरा 3 से 4 फीट का एक प्लास्टिक का पूरा एक लेयर जमा हुआ है। उसमें आपका प्लास्टिक है, बोतल है, बोतल जिस चीज में पानी भर जाता है या जिस चीज में वजन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे बैठ जाता है। उसमें रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, एवरीथिंग इज देयर। ये एक प्रॉब्लम है। तो ये एक एग्जाम्पल है और इस पॉन्ड को हमने 2 साल पहले रिस्टोर करना शुरू किया था। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बॉडी से परमिशन लिया, उनके साथ एमओयू साइन किया, फिर कॉर्पोरेट्स को अप्रोच किया फॉर द सीएसआर फंड्स, वो हमें मिला। गवर्नमेंट के साथ, लोकल विलेज के साथ हमने एक टाइप किया, उनकी कमेटी बनाई एंड वी वर्क फॉर द 1 ईयर। और हमको द रिजल्ट इज कि आप जो नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे इज द सेम पॉन्ड। या दिस इज द सेम पॉन्ड एंड बिफोर आफ्टर ऑफ नाइफल पॉन्ड। You can just Google it on Naifal Pond, NAYPHAL, Naifal Pond, or Google Map. You can see the before after picture, satellite picture, so everything, and you can see the change of water body. तो ये एक वाटर बॉडी है। यहाँ पे लास्ट विंटर में अराउंड 20 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को स्पॉट किया गया था, जबकि यहाँ पे पहले लोग बाग इधर जाने से डरते थे। यहाँ पे जब हमने शुरू किया था तो होता क्या था कि अगर गांव में कोई गलती से जानवर इसमें चला जाता था तो वो कभी बाहर नहीं आता था, और ऐसा लोग बताते थे हमें, बट हम विश्वास नहीं करते थे। बट जब हमने रिस्टोर करना शुरू किया तो वी फाउंड दैट कि बहुत सारे स्केलेटन्स उसमें हमें दिखे इस लेयर के नीचे, है ना। उसमें दे माइट बी द काउ, बफेलो, बिल्ली, ये बहुत सारे ऐसे थे जो इसमें एक बार गलती से घास खाने के चक्कर में या कैसे भी गया, क्योंकि ये एक तरह से वो अपना खाना इसको समझते हैं, या इसमें कई बार हम खाना फेंक देते हैं तो कई बार डॉग जो है उस खाने को खाने के चक्कर में अंदर घुस जाते थे, तो वो फिर कई बार फंस के वहीं मर गए। तो बहुत सारे स्केलेटन्स, बहुत सारे जो हड्डियों के ढांचे वहां से निकले, तो ये बहुत डरावना था। बट अभी वहां पे देखेंगे तो इस बार अराउंड बहुत सारे लोग वहां पे सेल्फी लेने के लिए गए, बहुत सारे बर्ड वॉचिंग करने के लिए गए। तो दैट इज लाइक ए वेरी सेटिस्फाइंग पिक्चर फॉर अस एंड रिजल्ट। दिस इज द सेकंड पिक्चर। दिस इज इन राजनगर एक्सटेंशन। The picture you can see in background is of DPS school in Rajanagar extension. तो ये एक बेंचमार्क इस पॉन्ड के लिए बन गया, although they didn't support us, but ये, and I'm very proud to say that कि the same picture was used by our honorable Prime Minister in मन की बात। इंडिया को एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है कि जो वाटर बॉडी मर गई वो मर गई, अब वापस से रिस्टोर नहीं हो सकती। वी कैन रिस्टोर द वाटर बॉडीज। हमको बस एक उसको समझने की जरूरत है, उसकी बेसिक समझने की जरूरत है। तो ये एक दूसरा पिक्चर था। और ये एक दूसरा गुड़गांव सिटी का एक पिक्चर है, मानेसर सिटी का, सॉरी। तो गुड़गांव मानेसर एक ही है। तो मानेसर सिटी का एक पिक्चर है। ये अराउंड 5 हेक्टेयर का एक बड़ा वाटर बॉडी हुआ करता था, बट अराउंड 3 हेक्टेयर आउट ऑफ द 5 हेक्टेयर हैव बीन एंक्रोच्ड बाय द पीपल। लोगों के घर बन गए हैं, वहां पे एक मंदिर बन गया है, वहां पे सड़क निकल गई है।
स्टिल दे आर ट्राइंग टू एनक्रोच द रेस्ट पार्ट ना, उसके लिए भी हमें बहुत फाइट करना पड़ा वहां पे, और हमको ये रिस्टोर किया। अब ये वहां पे है, स्टिल अवर वी आर फाइटिंग विद द पीपल, विद द गवर्नमेंट टू सेव दिस पॉन्ड। बट हमने यहाँ पे 2 साल काम किया है, एंड दिस इज द लेटेस्ट पिक्चर ऑफ दिस पॉन्ड। अगेन लेफ्ट साइड, लेफ्ट वन इज द ऑफ द नाइफल पॉन्ड, जो सबसे पहला पॉन्ड था, उसी की बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स है, ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन एंड आफ्टर द रिस्टोरेशन। राइट वन इज द कैलकेरे लेक इन बैंगलोर। ये अभी हमने पिछले महीने ही इसका इनॉग्रेशन किया है, एंड वी वर सपोर्टेड बाय द एयरबस, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अंडर देयर CSR initiatives. The left picture is of Greater Noida city. The building you can see in background is of BSF का headquarter है, एक I think 37 battalion का, and the right one is in Ghaziabad city. तो ये दोनों पिक्चर है जो हमने पिछली साल ही रिस्टोर किए हैं, and both are the like self maintained picture, I mean self sustainable ponds, जहाँ पे अभी लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, either they are doing fish farming, lotus farming, सिंगाड़ा की खेती, but they maintain it. During the restoration of ponds, we like found जी या जस्ट टू मतलब एक थोड़ा सा क्योंकि आप इन द फ्लो हैं, so when you say self sustainable, for example, how is the pond self sustainable, मतलब उसके पीछे का क्या ये है? हाँ देखिए, हाँ ऑल्दो हम ये इसके बाद भी डिस्कस करेंगे, बट मैं इसके बीच में भी बताना चाहूंगा कि सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब है कि कोई भी वाटर बॉडी जिसको मेंटेनेंस की जरूरत है, बार बार उसमें उतना कचरा ना निकालना पड़े, जो उसको साफ करने का खर्चा है वो खुद वाटर बॉडी से निकले। अगर आपको उसमें सिंगाड़ा की खेती करने से साल का 2 लाख रुपए इनकम हो रहा है एक फैमिली को, तो वो 10,000 रुपए का जो उसका कॉस्टिंग है वो उसी से निकल सके, ना कि हमको बार बार किसी से कॉर्पोरेट से CSR फंड्स मांगना पड़े, ना कि हमको बार बार डोनेशन के लिए कैंपेन चलाना पड़े। That is the means of self sustainability of animal. ये during the restoration of these water bodies, we like found that कि हमारी वाटर बॉडीज सुंदर तो दिख रही हैं, बट उसमें उतना बायोडाइवर्सिटी नहीं है, और कि एक पॉन्ड में और एक स्विमिंग पूल में जो बेसिक डिफरेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोई भी स्विमिंग पूल में बायोडाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। I mean, अगर बायोडाइवर्सिटी हो गई, उसमें सांप आ गए, कछुए आ गए, तितली आ गई, तो फिर हमारे काम का नहीं बचे, उन्हीं को देना पड़ेगा। और अगर किसी पॉन्ड में ये सारी चीजें ना हो, नेचुरल पॉन्ड में जिसमें बर्ड्स ना हो, जिसमें रेप्टाइल्स ना हो, जिसमें कछुए ना हो, फिर वो स्विमिंग पूल डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये एक डिफरेंस होना चाहिए। हमने देखा कि हमारे पॉन्ड्स तो रिस्टोर हो रहे हैं, बट उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आ रही है। तो by seeing the behavior of aquatic birds and migratory birds, we started to develop the pond islands in mid of the pond during the restoration. Pond island develop करना, उसके ऊपर कुछ इस तरह की native grasses लगाना, जिसमें वो अपना नेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा सिक्योर फील करती है, जिसमें वो अपने अंडे इसी से छिपा सकती हैं, जिसमें खुद भी छिप सकती है, और जिस तक वो सेफ सिक्योर फील कर सके। तो हमने उनको डेवलप करना शुरू किया, उनके ऊपर घास लगाना शुरू किया, एंड दिस वन इज द रिजल्ट ऑफ दीज पॉन्ड आइलैंड्स। जितने भी हमने पॉन्ड आइलैंड्स डेवलप किए, वहां पे हम देखते हैं अभी भी 20-20 वहां पे घोंसले बने रहते हैं, वहां पे अंडे छिपे रहते हैं उनके, और बिना बुलाए, बिना फोर्सली इंट्रोड्यूस किए हुए वहां पे अपने आप माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगी, अपने आप एक्वेटिक बर्ड्स आने लगी। That is was like a very proud moment for us कि जब हमने पहली बार पॉन्ड आइलैंड डेवलप किया, और फिर विंटर सीजन में पहली बार वहां पे हमने इस तरह के एक्वेटिक बर्ड्स को देखा। तो ये एक रिजल्ट है, और इसके लिए खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की जब हमने सोशल मीडिया पे अपलोड किए पिक्चर्स,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की, IITs की टीम आई कि ये इसको वेरीफाई करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन कि आपने कैसे किया, कहाँ से सीखा। तो हमने बताया कि हमने कहीं से नहीं सीखा है, हमने बस उनके बिहेवियर को देखा है कि कहाँ पे वो जाती हैं, कहाँ पे नहीं जाती हैं, क्यों नहीं जाती हैं। और हमें लगा कि जब वो किनारे पे अंडे देती हैं, घोंसले देती हैं, बच्चे उनके रहते हैं तो कुत्ते खा जाते हैं। तो हमें उनको एक जगह देनी थी, सेफ एंड सिक्योर जगह देनी थी, उनके लिए वैसी घास लगानी थी जहाँ पे वो छिप सके या अपने अंडे दे सके। तो हमने वही करके देखा एंड वी गॉट दिस रिजल्ट। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश्ड की एक बुक और उसके कवर पेज पे हमें छापा कि दिस इज द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट द एक्वेटिक बर्ड्स एंड टू रिस्टोर द पॉन्ड्स। क्योंकि पॉन्ड्स को रिस्टोर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट उनको जितना हमें जरूरत है पॉन्ड्स की, उससे ज्यादा बर्ड्स को जरूरत है। अभी क्या करते हैं हम, आप देखेंगे बहुत सारे पॉन्ड्स को रिस्टोर किया जाता है, उसको 95% उसको कंक्रीटाइज कर दिया जाता है। वी आर जस्ट कॉपिंग द फॉरेन कंट्रीज, है ना। उसको नीचे से कंक्रीट कर दिया जाता है, साइड से टाइल लगा दी जाती है, पत्थर लगा दिए जाते हैं। तो अभी बताइए कि अगर चारों तरफ सीढ़ियां बनी रहेंगी, पत्थर लगे रहेंगे, बीच में भी कोई जगह नहीं रहेगी, तो वहां बर्ड्स आके करेगी क्या? वो पत्थर पे तो नहीं बैठेगी, पत्थर पे तो घोंसला नहीं बनाएगी। दैट इज द कमी जो कि हमारे रिस्टोरेशन में है। I like started to raise the questions to the restoration policies, the way our engineers are adopting। तो बहुत सारी जगह अभी इसको बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इंडिया में इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, ये एक अभी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अपने फंड से 100 पॉन्ड्स को इस बार रिस्टोर कर रहे हैं। एंड एवरी पॉन्ड, हर तालाब में पहली बार वो पॉन्ड आइलैंड्स को डेवलप कर रहे हैं। इस बार अभी मेरे पास एक बहुत सारे IAS का फोन मेरे पास आता है कि हम भी जहां पे हम भी पॉन्ड रिस्टोर करते हैं वहां पे अभी हमने शुरू किया है कि हम पॉन्ड आइलैंड डेवलप करना शुरू कर रहे हैं। तो दिट इज लाइक ए चेंज की जो मैंने इंडिया में देखा है पॉन्ड रिस्टोरेशन के लेके। क्योंकि पॉन्ड्स में न केवल माइग्रेटरी बर्ड्स या एक्वेटिक बर्ड्स डिपेंड करती है, ऐसी हजारों चीजें जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसी लाखों स्पीसीज हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जो एकमात्र घास में छिपे रहते हैं, जो रात को ही सिर्फ निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते हैं। तो ये सारी पिक्चर्स हमारे पॉन्ड्स की हैं, कोई गूगल से कॉपी नहीं की गई है या कहीं से डाउनलोड नहीं की गई है। और ये सब ऐसे स्पीसीज हैं जो पॉन्ड्स पे डिपेंड करते हैं। इनका पॉन्ड का होना इन हमसे ज्यादा जरूरी इनके लिए है, क्योंकि हम घर में रह सकते हैं, इनको कहीं ना कहीं पानी की जरूरत पड़ेगी। और गांव में तो चलो अभी भी पॉन्ड्स हैं, बट अब जहां जहां पे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है वहां पे पॉन्ड्स को स्विमिंग पूल बना दिया जाता है। फिर वहां पे कोई माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आती है, कोई एक्वेटिक, कोई मंकी वहां पे नहीं रह सकता है। फिर होता क्या है, मंकी हमारे घर में घुसते हैं, चाहे वो पानी की टंकी को तोड़ के उसमें घुस जाते हैं, और हम उनको कई बार जहर की मिला के दे देते हैं बहुत सारे लोग, है ना। कई बार उनको बंद करके गाड़ियों में दूर छोड़ना पड़ता है। बट उनको जरूरत को हमें समझना पड़ेगा कि उनको वाटर बॉडी चाहिए जहाँ पे वो उछल के नहा सके। अभी इस तालाब में आकर आप कभी जाएंगे तो पास में एक पेड़ है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और पेड़ से सीधा छलांग मारते हैं पानी में। उस तरह से वो खेलते हैं, उस तरह से वो नहाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं जो कि उनकी जीवन की जरूरत है। ये एक तरीका है जो हम पॉन्ड को रिस्टोर करते हैं। सबसे पहले हम पॉन्ड को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है वहां पे, है ना। कितना गहरा है, कितना गंदगी है, कितनी जगह से पानी आ सकता है, पानी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, पानी को कहाँ से कनेक्ट किया जाना चाहिए, कहाँ से पानी को रोक दिया जाना चाहिए, या जो गंदा पानी आ रहा है उसको कहीं हम डाइवर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम जो भी एक तो गवर्नमेंट ऑनर हमेशा इंडिया में वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी वाटर बॉडी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। हो सकता है कुछ प्राइवेट हो, बट प्राइवेट को हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो प्राइवेट के पास तो उसी की ऑनरशिप है, वो जैसे करना चाहे। हम करेंगे अगले साल वो बंद करके घर बना देगा उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जिनका कोई देखने वाला नहीं है उनको हम करते हैं। गवर्नमेंट से NOC लेते हैं, फिर
जो भी स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है ना, बहुत सारे लोग इंडिविजुअली सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हमको सपोर्ट करते हैं, तो उनको एक प्रपोजल हम बना के देते हैं मल्टीपल को। तो वहां से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के बाद फिर एक जल चौपाल हम कंडक्ट करते हैं। जल चौपाल मीन्स वाटर मीटिंग। गांव वालों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, उनको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्योंकि उस तालाब के बारे में उससे ज्यादा नॉलेज गांव वालों को होनी चाहिए। वो हमें अपना बेस्ट बताते हैं कि ये कैसा था पहले, अभी क्या जरूरत है इसमें, कहाँ से पानी आ सकता है, कहाँ से नहीं, उसको करते हैं। फिर वही खुदाई, क्लीनिंग, चारों तरफ बंड बनाना, फेंसिंग करना, पेड़ लगाने, और उसकी मेंटेनेंस सस्टेनेबिलिटी के लिए पॉलिसीज बनाना, गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके। दिस इज द फुल लाइक वे। ऑल्दो अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम बाद में टेक अप भी कर सकते हैं। ये एक दूसरी पिक्चर्स है कुछ। अपार्ट फॉर द पॉन्ड रिस्टोरेशन, 2 साल पहले जब एक हम पॉन्ड रिस्टोर कर रहे थे गाजियाबाद में, तो हमने देखा कि हमने रिस्टोर किए कुछ पॉन्ड्स को, बट आज बारिश के टाइम पे आसपास की लैंडफिल साइट से जब बारिश होती है, क्योंकि लैंडफिल साइट क्या है, वो ऊंचे हैं, है ना, उनका लेवल जो है वो ऊंचा है, और पॉन्ड हमारे नीचे है। जब हम उसका बेसिक ओरिएंटेशन देखते हैं, लेवल देखते हैं ग्राउंड लेवल से, तो बारिश में क्या होता है कि पूरा कचरा बारिश के साथ बह के नीचे आता है, तो पूरा पॉल्यूट हो जाता है वाटर बॉडी, पूरा कचरा से भर जाता है। तो हमने क्या किया कि इस तरह की लैंडफिल साइट्स को अडॉप्ट करना शुरू किया कि हम जो है इनको भी हम रिस्टोर करेंगे। ये पॉन्ड में तो रिस्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि 20-20 फीट नीचे तक कचरा या लीचेट हो चुकी है, जो ये पॉल्यूशन है उनसे लीचेट होता है लिक्विड में, लिक्विड फिर नीचे ग्राउंड तक लीचेट होता है, तो उसको पॉन्ड नहीं बनाया जा सकता, अदरवाइज ग्राउंड वाटर फिर से पॉल्यूट हो जाएगा पूरा। तो इनका एक ही सॉल्यूशन हमें समझ में आया कि हम इसको अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, तो हमने फिर से अगेन बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करना शुरू किया। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का हमें रेस्पॉन्स भी मिला, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने हमें सपोर्ट किया। तो ये एक लैंडफिल साइट है जिसको हमने अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम ऑलरेडी वहां पे 12,000 सैपलिंग्स प्लांट कर चुके हैं, और इस पे हम लगभग 50,000 सैपलिंग्स को प्लांट करेंगे इस साल। तो ये इंदिरापुरम एक जगह है नियर टू द दिल्ली, वहां पे हम इसको कर रहे हैं। और ये जो प्लांटेशन अभी तक हुई है, दैट इज सपोर्टेड बाय द हिताची ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्लोबल लॉजिक। इसके साथ साथ दूसरे कॉर्पोरेट्स भी हैं जो उसको हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक दूसरी लैंडफिल साइट है, अराउंड द 10 एकड़ लैंडफिल साइट है। अब देखेंगे आसपास के जितने भी बिल्डर्स हैं वो बहुत परेशान थे, है ना, उन्होंने इन्वेस्ट किया था कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए, बट गवर्नमेंट के लैंडफिल साइट वहां से क्योंकि शिफ्ट नहीं हुआ, इवन वो 10-11 मंजिल ऊंचा उन्होंने लैंडफिल साइट बना दिया, तो उनको कोई फ्लैट नहीं बिका। They were fighting in Supreme Court, NGT, anything. But in the last, उन्होंने फिर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको वहां से शिफ्ट भी किया और प्रोसेस करके RDF में कन्वर्ट किया। RDF मींस रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल, जो कि बाद में सीमेंट फैक्ट्रीज को, थर्मल पावर प्लांट्स को, वेस्ट टू एनर्जीज को वहां से गया। बाद में जो जिस कंडीशन में आपको दिख रहा है उस कंडीशन में फिर से हमने इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसको हम और क्लीन कर सकते थे। ये 20 फीट नीचे तक और ऐसे ही मिट्टी में पूरा माइक्रो प्लास्टिक मिला हुआ है, जितना क्लीन कर सकते थे उसको किया। उसके ऊपर फिर 4-5 फीट तक जो शहर के जितने भी STPs थे, सबसे हमने जो उनका सिल्ट बचता है, सिल्ट वहां से हमने मांगा, और जहां जहां बेसमेंट कूद रहे थे सबसे हमने मिट्टी मांग के उसके ऊपर 5 फीट तक मिट्टी चढ़ाया और उसके ऊपर पेड़ लगाना शुरू किया। तो ये एक साइट है, और रिजल्ट ये आया कि द सेम लैंडफिल साइट नाउ बीइंग स्लोली कन्वर्टेड इनटू द अर्बन फॉरेस्ट। और वही कॉर्पोरेट जिनका वहां से जो 500 करोड़ के नुकसान में थे, 1000 करोड़ के नुकसान में थे, नाउ दे आर सेलिंग देयर फ्लैट्स, देयर प्रॉपर्टीज ऑन द नेम ऑफ फॉरेस्ट व्यू। अभी आप उनका ब्रोशर देखेंगे, वहां मांगेंगे तो सबके ब्रोशर पे बड़ा बड़ा लिखा है कि हमारे फ्लैट्स क्या है, फॉरेस्ट व्यू पे है ना, आप वहां से बैठ के फ्यूचर में फॉरेस्ट देख सकते हैं। तो ये एक चेंज देखने को मिला, एक छोटे से एक्शन ने वहां पे कितना हजारों करोड़ रुपए का वहां पे
लोगों को प्रॉफिट दिया है वहां पे। एक दूसरे एरिया है जो हमने ऑलरेडी कर दिए है ना, तो ये हम एक जैपनीज मेथोडोलॉजी है, जैपनीज मेथोडोलॉजी कॉल्ड मियावाकी मेथोडोलॉजी। तो इससे क्या होता है, एक छोटा प्लांट 2 फीट का जो 10 साल में जितना बड़ा होता है वो 1 साल में 2 साल में बड़ा होता है। 10 साल में जितना ग्रोथ होता है कि पेड़ की, वो 2 साल में बड़ा हो सकता है। आप इसको गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ये। these are the all corporates group who supported us in these initiatives, and always I say thank you them who supported us। अभी तो पहले हम corporates को अप्रोच करते थे, ऑफिस में विजिट करते थे, बट दिस इज टचवुड एंड गॉड ब्लेस अस कि अभी कॉर्पोरेट्स हमको अप्रोच करते हैं, और हमारे पास उतना रिक्वेस्ट है कॉर्पोरेट्स का कि हम हर साल पिछले 2 साल से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को तो मना कर देते हैं कि नहीं अब इतना हम नहीं कर पाएंगे, हमारा जितना कैपेसिटी है उतना ही सिर्फ हम कर पाएंगे। तो अभी भी जैसे हम गुजरात में कर रहे हैं इसी तरह की वाटर बॉडीज को विद सपोर्ट ऑफ HDFC लाइफ, बैंगलोर में हमने एयरबस के साथ सपोर्ट से किया है। तो हमने इस तरह से 80+ वाटर बॉडीज को रिस्टोर किया है, और 6 अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं हम। 500 से ज्यादा जल चौपाल कंडक्ट किया है इस इनिशिएटिव के अवेयरनेस के लिए, 100 से ज्यादा क्लीन ड्राइव्स किए हैं, एंड आई हैव डिलीवर्ड 10 TED टॉक्स till now. More than 100 times I have been keynote speaker in IITs, IIMs, PSU, national universities in India, even in foreign also. 5 international awards हमको मिले हैं, and we have been praised by our honorable Prime Minister and Chief Minister Yogi Adityanath ji. These are some snapshots of social media handles when our honorable Prime Minister appreciated us, honorable Chief Minister appreciated us, some Bollywood stars including Raveena Tandon, Sunil Shetty, and lots of Bollywood stars supported us with their social media handles. This by doing all these activities, we are trying to like prevent or work on these social issues, including we are achieving SDG goals, 6 SDG goals, preventing the urban floods, groundwater recharge, social and economical development of village and urban cities, and most important things, we are protecting our biodiversity. आप एज ए कॉर्पोरेट, आप एज ए NRI क्या कर सकते हैं? आप जब भी आप इंडिया में आए तो बहुत सारे लोग हैं जो US में रहते हैं या बहुत सारी कंट्रीज में रहते हैं, जब भी वो इंडिया आते हैं स्पेशली दिल्ली NCR में आते हैं तो दे विजिट आवर साइट्स और वो अप्रोच प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। हमारे एक पूरा आधा अर्बन फॉरेस्ट तो इसी वजह से होता है कि जब भी कोई गेस्ट आता है दे 100 पेड़ डोनेट करते हैं, कोई 1000 पेड़ डोनेट करते हैं और उनके मेंटेनेंस के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हम उस तरह से उसको डेवलप कर रहे हैं, वो स्पेशली NRIs के लिए। आप क्लीन ड्राइव्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने गांव में बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो गांव में पॉन्ड डेवलप के लिए, रिस्टोरेशन के लिए खुद गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सब्सिडी देती है, सपोर्ट करती है, बट अवेयरनेस या इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो पैसा वापस चला जाता है। आप उन पॉलिसीज के बारे में स्टडी करके गांव वालों को बता सकते हैं। दैट इज आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पैसा, अदरवाइज क्या होता है कि गांव में, आसपास के गांव में कोई पॉलिटिकल लोग होते हैं, पढ़े लिखे कुछ चतुर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं उस पैसे को खा जाते हैं ना, गलत हाथों में वो एक तरीके से चला जाता है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को पिंग कर सकते हैं ना, आपका देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक ऑनलाइन ग्रेवियस सिस्टम कि जहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, सजेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई एक पोर्टल है, हरियाणा में CM पोर्टल है, राजस्थान में एक पोर्टल है। तो आप क्या है वहां जब अगर आप कंप्लेंट या सजेशन फाइल कर सकते हैं तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो आता है ना। और गवर्नमेंट जब ऑनलाइन सिस्टम में वो होता है तो उसको कोई ऐसे डिलीट नहीं कर सकता, वो हमेशा एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। तो और कई बार उस पर नजर पड़ती है तो उस पर काम भी होता है। वॉल पेंटिंग्स हम कर सकते हैं, आप डोनेट प्लांट कर सकते हैं। आप मान लिए आपका बर्थडे है ना, आई एम नॉट सेइंग टू माय NGO इस पे, है ना, लेकिन आप जहां भी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यू जस्ट सर्च द लोकल NGOs, है ना। बहुत सारी NGOs हैं
जो हर साल शुरू होती हैं अच्छी इंटेंशन के साथ बाय द यंगस्टर्स, बाय द स्टूडेंट्स, बट उनको सपोर्ट ना मिलने की वजह से, क्योंकि घर भी चलाना है, फैमिली भी रन करनी है, वो 1-2 साल में बंद हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमको लगता है कि लोग पैसे खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नो डाउट कि वो अपना घर भी उनको रन करना है, बट उनको हम सपोर्ट करें तो दे कैन डू गुड, है ना। अगर मुझको सपोर्ट अभी नहीं मिलता तो मैं हो सकता है जॉब छोड़ के वापस नहीं आ पाता इस फील्ड। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियर हैं, टीचर हैं, वो करना चाहते हैं, बट उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप जब भी अपने गांव के आसपास काम कर रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करिए। आप उनको पैसा डोनेट नहीं कर सकते, आप उनको पेड डोनेट कर सकते हैं, आप उसको कुछ टूल्स डोनेट कर सकते हैं सफाई के लिए, आप उनको ड्रेसेस डोनेट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत आपका एक छोटा सा एक्शन बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। एक हमारा कैंपेन है हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड। तो आप जब भी अपने गांव में जाइए, आप अपने उस गंदे तालाब के साथ फोटो लीजिए, सोशल मीडिया पे अपलोड करिए हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड के साथ। तो उससे क्या होगा, एक वो जब भी आप हम सर्च करेंगे तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें पूरे पॉन्ड की इंफॉर्मेशन फिर हम आपसे मांगते हैं और उसको ट्राई करते हैं कि हम फ्यूचर में उसको अप्रोच करें। तो दीज आर द लाइक थिंग यू कैन सपोर्ट अस और एनी एनजीओ। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच, आपने उतने ध्यान से इसको सुना। और अब मैं चाहूंगा कि कोई भी क्वेरी हो तो अब आप प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, although my farmer friends were waiting outside for me कि मैं उनको ज्वाइन करूँ इसके बाद। Thank you so much. A round of applause for रामवीर जी, everyone. बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है रामवीर जी आपका, देश के लिए, समाज के लिए, Thank you so much. for humanity basically, क्योंकि that is the most important thing. If you don't mind, can we stop the share, रामवीर जी? Thank you. Yes, please. या रामवीर जी, एक सवाल, चूंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेरा जियोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, आप जब ये पॉन्ड्स बनाते हैं तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जियोलॉजिकली, देयर इज ऑलवेज एन एक्वीफर, आपको यानी देयर इज अ ग्राउंड वाटर जो अपने तालाब में वगैरह एक एक्वीफर रहता है। तो आप जब ये करते हैं, आप साफ सफाई तो ऊपर की कर लेते हैं, बट जो इंटरनल एक्वीफर पूरा मलाइन हुआ है उसको आप कैसे डील करते हैं? हाँ, देखिए, अगर आप एक्वीफर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी वाटर बॉडी। एक्वीफर हमारा तब काम आता है जब वहां पे अगर जितना हम खोद रहे हैं वहां तक अगर एक्वीफर का रीच है। क्योंकि अभी क्या होता है, आप जहां जहां तक, जैसे अगर मैं खुद अपने गांव की बात करूं तो पहले 20 फीट पे पानी होता था, ग्राउंड एक्वीफर 20 फीट पे था, लेकिन अभी 200 फीट पे है। और 200 फीट तक तो हम पॉन्ड की खुदाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या होता है वहां पे इतना हम खोदते हैं कि वहां पे जो एक बेसिक लेयर है, जो ओरिजिनल लेयर है, जो ओरिजिनल साल्ट है या स्टोन है, वहां तक हम उसको मीट कर सके, है ना, ताकि जो एक तरह से नेचुरल पर्कोलेशन है ऑफ वाटर इनटू द एक्वीफर्स वो एक्टिव हो सके, है ना। अदरवाइज तो एक्वीफर्स 2 टाइप्स के एक्वीफर होते हैं, जो एक वहां पे भी है और या वहां से गुजरता हुआ जा रहा है कोई। अभी जैसे अगर हम बहुत सारे लोगों ने एक गलती ये भी करते हैं कि दे ट्राई कि हम वहां पे एक्वीफर्स तक एक वहां पे होल करके ड्रिलिंग करके एक्वीफर्स तक पॉन्ड को मिला दें ताकि वो ज्यादा रिचार्ज हो सके। बट होता क्या है कि वो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि अभी देखिए हमारे पॉन्ड्स जहाँ पे भी है वहां पे सिर्फ रेन वाटर वहां पे नहीं आता है, रेन वाटर के अलावा वहां पे ग्रे वाटर भी हमारा मिक्स हो जाता है। और अगर हम ये करते हैं कि उसको हम ड्रिल करके सीधा एक्वीफर्स तक जोड़ दें तो कई बार अगर हम फ्यूचर में मेंटेन नहीं कर पाए उसको, तो हमारा क्या है कि ग्रे वाटर सीधा एक्वीफर से मिल जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं कि और पूरा आसपास के गांव का पानी गंदा हो जाएगा। और ये कई बार लोगों ने किया भी और बहुत उल्टा भी हुआ। उसके बाद लोगों गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर बहुत फाइन भी लगाया गया, क्योंकि नल से गंदा पानी निकलने लगा वहां पे। तो वो एक है। तो हम ट्राई करते हैं कि वहां पे जो ओरिजिनल लेयर है उस तक बस हम उसको खोदें, जो सिल्ट बाद में ऐड हुई है उसको हटा दें, बाकी उसको वैसा ही छोड़ दें। ओके, ग्रेट। मयूर जी के पास कुछ सवाल थे। मयूर सावंत। हाय रामवीर जी, नमस्कार आपको। मैं मयूर सावंत।
सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। थैंक्स टू MPF also for bringing Mr. Ramveer ji for this such a great cause. अच्छा रामवीर जी, मेरा ये प्रश्न है, मैं महाराष्ट्र से कोंकण एरिया से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे ऐसे होता है कि बारिश तो बहुत होती है, बहुत मतलब कि फ्लड्स आते हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है, जैसे मार्च से पकड़ लो या मार्च से मई तक या अप टू जून तक, जब तक बारिश नहीं होती, वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की तकलीफ होती है, गाँव वालों को पानी नहीं ठीक है। मिलता है। तो ऐसे जगह में एज अ आपकी क्या सुझाव रहेंगे कि कैसे उसको इम्प्रूव करा सकते हैं? वहाँ ना कोई पॉन्ड है, ना कोई मतलब नदियां है, वो पूरी सूखी हो जाती है ऐसे टाइम में। तो आपका सजेशन क्या रहेगा? ये एक सवाल था मेरा। और जस्ट अनदर स्मॉल क्वेश्चन, आप जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस काम में एज मैं या मेरी वाइफ और सम ऑफ माय फ्रेंड्स, इफ आई रिफर देम, so how they can participate in your good cause, whatever means, volunteer या by other means as a donation? हाँ, तो देखिए ये बिल्कुल भी क्या करते हैं कि आपकी तरह लिंक्डइन पे वी कीप पोस्टिंग अबाउट आवर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज। तो आपके वो ट्रेवलिंग या फिर आप इधर रहते हैं तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो वॉलेंटियर के लिए है। जैसे कोई काम मशीन के लिए है तो वहां पे तो आप कुछ नहीं कर सकते या मैं भी नहीं कर सकता, वो तो मशीन बेसिस ही होता है। बट ये है कि आप वॉलेंटियर बेसिस, चाहे वो प्लांटेशन ड्राइव हो, क्लीन ड्राइव हो, तो वहाँ पे आप प्लीज फील फ्री टू वॉलेंटियर। और हम आप ईमेल के थ्रू अगर आप हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम उसको क्या है या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, तो आप वहां से भी या लिंक्डइन से जहाँ से भी है तो आप ऑनगोइंग एक्टिविटीज के बारे में आप अपडेट कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था आपकी, थैंक बहुत यू। सारे गांव ऐसे हैं तालाब भी नहीं है ना, या फिर नदी भी सूख जाती है। तो वहां पे तो क्या है, देखिए मेरी अगर स्पेशली है, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो है कि जहाँ पे तालाब नहीं है वहाँ तालाब बना सकते हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी सूख जाता है पानी, है ना, तो वहां पे क्या है, फिर हम आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके कुछ एडॉप्ट कर सकते हैं कि वो लॉन्ग टाइम के लिए पानी स्टे करे, है ना। या जैसे पॉन्ड लाइनर्स एक मार्केट में आते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक तालाब की शेप देके कोशिश करें कि ऐसी जगह पे तालाब बनाए जहाँ पे आसपास का एरिया अपने आप उस तालाब की तरफ पानी आ सके, या फिर छोटे छोटे नाली बना के उस तालाब से उस पानी को जोड़ सके। और फिर नीचे एक, अगर हमें मान लो, हमारे देखिए अलग अलग पर्पजेस होते हैं। एक पर्पज है कि हमको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे हमें चाहिए पोर्टेबल वाटर डेली यूज के लिए, है ना। तो वहां पे क्या करते हैं, फिर पानी तालाब के नीचे एक पॉन्ड लाइनर हम डाल देते हैं, मिट्टी को खोद के उसके नीचे बिछा के। तो उससे क्या है कि पानी पर्कुलेशन रुक जाता है उसका, और इवोपरेशन के लिए फिर बस हमें चारों तरफ पेड़ लगा सकते हैं ताकि इवोपरेशन कम हो फ्यूचर में। तो उसको क्या है, फिर हम पोर्टेबल वाटर पॉन्ड की तरह भी हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए फेंसिंग करनी पड़ेगी अच्छे से ताकि उसमें कोई गंदगी न डाले। तो दैट इज द वे वी कैन सपोर्ट यू। एनीवन थैंक यू एल्स? रमेश जी, एक थैंक यू वेरी मच। Mayur ji, one more information is, since you are from Maharashtra and Konkan region, our government has got a scheme by the name of Jalayukta Shivar. Now that is a dedicated scheme for creating ponds across Maharashtra run by our government. So if you Google that Jalayukta Shivar, you can get appropriate information, support, everything regarding creating ponds in Maharashtra. Yes, बरोबर। Sorry, Ramveer ji, sorry, just one information, because I was please. planning to नहीं, ask that you is this good question. information for me too. Yeah. Thank you. क्योंकि ये जलयुक्त शिवार is something which is has created huge difference, especially in the dry regions of Maharashtra, northern Maharashtra, जहाँ पे गवर्नमेंट हमारे देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर, उनका वो ड्राइव है, एंड दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मेरा सवाल ये था कि आपका कैसे कनेक्शन है उनके साथ, बट देन सिंस यू हैव सेड इट इज इंफॉर्मेशन, तो आई होप यू विल कनेक्ट एंड हैव सम अलाइनमेंट विद देम, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अपना भारत देश इतना बड़ा है
कि एक पॉन्डमैन से काम नहीं चलने वाला. We will need more pondmans, and you are an inspiration to all such pondmans. Maybe our Mayurji will become a pondman of Konkan. No, something similar to that is what is required. It is the need of time. मतलब आज के डेट में ये जरूरत है कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े. तो उस अंदाज से आपका जो नेटवर्क है, क्योंकि क्या हर जगह तो आप पहुंच नहीं पाएंगे. एक आदमी एक ही जान है, मतलब कहाँ कहाँ पहुंचेगा. तो आपका कोई ऐसा आपने नेटवर्क बनाया हुआ है जो बंदे आपने सिलेक्ट किए हुए, जैसे अभी महाराष्ट्र का सब्जेक्ट आया, हर स्टेट में दैट यू हैव गॉट सम पर्सन who will, you know, do work on your behalf. ऐसे कुछ है आपके इसमें? Sorry, can you please repeat? आपके बिहाफ पे अगर अलग अलग भारत के राष्ट्रों में किसी को काम करना है, जैसे अभी मयूर जी ने कहा, तो आपका कुछ नेटवर्क आपने बनाया हुआ है कि जो बंद से कनेक्ट कर सके? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे एक वॉलंटियर्स बहुत सारे हैं और मेरा मोटिव भी यही है, जैसा कि आपने अभी कहा कि वन पॉन्डमैन इज नॉट सफिशिएंट. तो अभी जो मेरा, चाहे वो कॉलेजेस में जाना, यूनिवर्सिटीज में जाना, उसका बेसिक पर्पस मेरा यही होता है कि मैं, अगर 1000 लोग वहां पे सुन रहे हैं तो 1000 लोग तो पॉन्डमैन नहीं बनेंगे, बट एटलीस्ट 1 और 2 निकले. तो अभी मैं चाह कर भी, अगर चाहूँ कितना भी अपना 24 में से 20 घंटे भी यूज करूँ, फिर भी मैं 1000, 2000, 3000 पॉइंट स्टोर कर पाऊंगा लाइफ टाइम में. बट अगर इसको बहुत सारे करने हैं तो द ओनली सॉल्यूशन इज की कम्युनिटी में से और पॉन्डमैन निकले जो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जिले में इस तरह के काम करें. तो मेरा भी बेसिक पर्पज वही है कि हम पॉन्डमैन बनाएं. तो अभी हम वही करते हैं कि जो भी हमारे बेसिस पे जुड़ता है उसको हम पॉन्डमैन नाम देते हैं और उसको हम बोलते हैं कि आप अपने क्षेत्र में करिए, वी विल प्रमोट यू, है ना, वी विल प्रमोट यू, वी विल लाइक ऑन आवर बिहाफ ऑफ आवर एनजीओ, आवर ऑर्गेनाइजेशन. Great. जी, अतुल जी. अतुल जी, यू हैड अ क्वेश्चन. आपको एक सवाल था. उनका ये सवाल था, क्योंकि वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं. What are your views about global climate change, and can we manage to cope up with the issue as humanity? Ponds or water bodies are small step towards them. आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या मत है? देखिए बिल्कुल, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मैं कहूँगा कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है जब तक कि हम उसको इस तरह के छोटे कॉजेस के साथ ना रिलेट करें, है ना. क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बनता है बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स को. अगर ग्लोबल इसमें चाहे वो रेन वाटर का, चाहे वो बारिश का जो पैटर्न है उसको चेंज होता हो, चाहे वो हीट वेव्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो टेम्परेचर राइजिंग की प्रॉब्लम है ना. उन सारी चीजों को जब हम जोड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को, तो तब जाके ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का टॉपिक निकल के आता है. बट हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऐसी नहीं, कोई चीज नहीं है या ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इसको हम यहाँ से ठीक कर सके. उसके लिए हमको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को काम करने के लिए भी हमको गांव में ही जाना पड़ेगा. और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम जब बहुत सारे IITs के बच्चे या इस तरह के गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की टीम जाती है तो वहां पे गांव में क्या है, वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं. मैं उनको वही सजेशन देता हूँ और फिर वो शिकायत करते हैं कि गांव वाले तो हमारी सुनते ही नहीं है ना. क्यों सुनेंगे? गांव वालों को ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना है ना. उनको इस वर्ड से कब क्या है, उनको परेशानी है कि अपने तालाब में पानी है कि नहीं है. और जब ये इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि आप ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं. तो कि सॉरी, तो इसलिए जो है, चाहे अब देखिए पॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो पॉन्ड क्या है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक वो स्मॉल यूनिट है ना. वो सबसे स्मॉल और सबसे कारगर यूनिट है डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करने के लिए. क्योंकि जब भी बाढ़ आएगी तो तालाब ही एक ऐसी चीज बचेगी जो हमको सबसे पहले सपोर्ट करेंगे. जब भी वाटर क्राइसिस आएगा तो तालाब वो एक चीज रहेगी जो हमें सबसे पहले सपोर्ट करेगी. ये हो गया ग्लोबल. लेकिन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में सबसे हॉट टॉपिक क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट.
डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पॉन्ड्स का बहुत अच्छा सा एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का बहुत डीप कनेक्शन है। अगेन जब हम हीट वेव्स की बात करते हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का सबसे हॉट टॉपिक है, तो गांव में अगर हीट वेव है हीट वेव में क्या होता है वो हमारा पूरा इकोनॉमी को प्रभावित करता है। और गांव का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ लाइन है, वो क्या है, दूध बेच के काम करना है ना। अभी आप एक स्टडी रिसेंटली हुई है, जो भैंस हमारी गाय भैंस जो है वो गर्मियों में अगर 1 लीटर पर डे भी दूध देना कम करती है हीट वेव की वजह से, और ये नेचुरल है। अगर आपके गांव में भैंस है तो वो गर्मी में ऑटोमेटिकली जून के महीने में वो दूध देना कम कर देगी, है ना। गांव वाले उस, और देश में वो दूध का एक तरह से क्राइसिस आने लगता है गर्मी के दिनों में। क्यों आने लगता है? क्योंकि उस टाइम पे दूध देना बंद कर देती है। और भैंस क्यों दूध देना बंद कर देगी? वो उसकी अपनी तो कोई मर्जी नहीं है कि चलो गर्मी में मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको टेम्परेचर उतना ज्यादा है कि उसकी पूरी एनर्जी उसको सहन करने में निकल जाती है। तो ये देखा गया है कि जिन गाँव में तालाब है और भैंस फील्ड उसमें तालाब में जाके आराम से पड़ी रहती है, आराम से नहाती है, वहीं पे आराम से घास खाती है, उन गाँव में कोई फर्क नहीं पड़ता भैंस के दूध में। लेकिन जिन गाँव में तालाब नहीं है या फिर बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है, या फिर जो पूरे दिन अपने घर में बंधी रहती है, उसमें तुरंत दूध देने में या दूध की जो क्वांटिटी है उसमें अंतर आ जाता है। अगेन पूरा देश का जो इकोनॉमी है उसको प्रभावित करते हैं पॉन्ड, है ना। तो पहले हीट वेव से दूध का क्राइसिस, और दूध का क्राइसिस तालाब कनेक्शन। तो जो जैसा आपने कहा कि जो मैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को जो मैं देखता हूँ, मेरी नजर में एवरीथिंग इज पॉन्ड, है ना। तो मैं पॉन्ड से सब चीज को रिलेट कर सकता हूँ। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी मेरे लिए पॉन्ड ही है। क्या बात है। अजून कोणाला प्रश्न विचारायचा आहेत का? डज एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चंस? किसी और को सवाल पूछने हैं? ओके, सो क्योंकि और सवाल नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई विल नाउ इनवाइट आवर प्रेसिडेंट। Can I request all of you who can just switch on their videos so that we can have a photo opportunity with our own pondman now. आप हमारे फैमिली के मेंबर एक हो गए हैं, so please switch on your videos and I will ask Anand ji, our president, to just summarize the entire event for us, please. Yes, sure. First, we'll have our photographs. So please switch on, everybody, switch on your videos and also switch on your smile. That is important. Yes, that is more important. Yes, yes. And your smiles, and we will just wait for, okay. Most of them have switched on their videos. Some of them are still pending to switch on their smiles. And there we go. A few pictures. Thank you. Keep the videos on, that's fine. Anand ji, back to you. Yes, yes. Thank you, Avinash. रामवीर जी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना प्रेरणात्मक कार्य आप जो कर रहे हैं, जो प्रोत्साहन आप सोसाइटी को देते हैं, सो मन में विचार आता है कि ये सब करने की शक्ति कहाँ से मिलती है। स्पेशली जब शुरुआत में आपने बताया कि आपने जॉब छोड़ के सब काम शुरू किया, सो रियली मतलब रोंगटे खड़े करने वाली कहानी आपकी है। और आज न कल, मे बी विद इन अ मंथ और सो, मे बी as somebody also pointed out कि I also like to join this mission, क्योंकि जैसे जैसे आप फोटोग्राफ्स और तालाब के कंप्लीट स्वरूप बदलने की तस्वीरें दिखा रहे थे, इट मेड मी नॉस्टैल्जिक, क्योंकि मेरा बचपन भी गांव में गया है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अप टू आई थिंक 8वीं या 9वीं तक मैं गांव में पढ़ा। एंड ड्यूरिंग समर्स एंड वी ऑल यूज्ड टू प्ले अराउंड द लेक साइड। सिंगाड़े की बात की आपने, सिंगाड़े भी, कमल एंड ऑल दिस थिंग्स। सो और महाराष्ट्र प्रोफेशनल फोरम ऑन ए level of the community, what we are doing it, we are trying to help all the professional. हम भी आप लोगों से और आपकी कंप्लीट टीम से जुड़ना चाहेंगे जरूर।
और आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने कल मुझे बताया कि आप अहमदाबाद में हैं, तो मैं जरा घबरा गया था, अरे हो पाएगा कि नहीं, बट आपने जो हमको प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, और जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकेगी, डेफिनेटली वी विल बी इन टच विद यू वेरी सून। थैंक यू सो मच रामवीर जी। Thank you so much again for inviting me. The only like challenge we have ki we cannot accept the foreign contribution till now, because we don't have the FCRA certificate and all from our central government. But अगर आप इंडिया कोई आ रहा है, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या पेड़ लगाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. और the most popular thing about me or us in India, that we are the only NGO who don't have the research papers ना. हमने अभी तक कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया है. और the reason कि all the IITs and IIMs invited me, I asked them कि आपके पास उतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बट यू इनवाइट अस. और तो उनका भी यही रीजन है कि हमारा 90% एनर्जी इंडिया में रिसर्च पेपर में चली जा रही है, थीसिस लिखने में चली जा रही है. और मैं बहुत सारे मेरे पास अभी PhD स्कॉलर्स है, IITians है, तो मैं देखता हूँ कि लोग वहाँ पे एक ऑफिस में बैठ के पूरा वेटलैंड के बारे में, तालाब के बारे में पूरा थीसिस लिख लिया है, वो अप्रूव भी हो गया, उनको अच्छी जॉब भी मिल गई है, बट उन्होंने कभी वो पॉइंट देखा ही नहीं जाके, है ना. तो कोई भी सपोर्ट करने से पहले मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हम फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से ज्यादा, किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा द मोस्ट थिंग कि आप तालाबों को विजिट करें, चाहे अपने वो गांव में जाके विजिट करें, चाहे हमारे तालाबों पे विजिट करें, बट उससे पता चलेगा कि एक्चुअल कंडीशन है क्या. क्योंकि अभी तक भी अगर मैं आपको होमवर्क दूं कि आपको एक घर से नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है या कल आपको मुझे दिखानी है, तो आई एम श्योर कि 90% आप लोगों में से भी एक नेचुरल सीनरी ड्रॉ करेंगे, जिसमें पीछे पहाड़, पीछे से उगता हुआ सूरज, है ना, आगे एक छोटा सा पॉन्ड, झोपड़ी, है ना. क्योंकि हमारा पिछले कई पीढ़ियों से वही दिमाग में आ रहा है कि हमारे कोई भी सीनरी में इसी तरह के सीन रहते हैं, बट दैट इज नॉट द रियलिटी, है ना. वो इसलिए है कि वो हमारे कहीं ना कहीं डीएनए में आ गया, एक वैसा सीन दिमाग में हमेशा घुसा रहता है. आप रियलिटी जब जाके देखेंगे तो एक्चुअली पता चलेगा. और मुझे, चाहे आप मुझे सपोर्ट करें या वहां पे जो कोई भी लोकल लोग हैं, जो चाहे वो गांव के स्तर पे हो, क्योंकि हमारे इंडिया क्या वर्ल्ड का एक वही प्रॉब्लम है कि हम उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं. जो लोग सच में अभी तक गांव में हैं, या इनको जो सच में अपना सैलरी का 20% खर्च कर रहे हैं, और फिर भी लोग उनको गाली देते हैं कि अच्छा खासा इंजीनियर था, जॉब छोड़ के इधर आ गया. क्योंकि मैं खुद, मुझे महसूस होता है कि जब मैं था तो घर वालों ने बहुत अपोज किया, इवन रिश्तेदारों ने बहुत एक तरह से मजाक उड़ाया ना कि ये इंजीनियर होके तालाब साफ करता है. क्योंकि तालाब और नाली दोनों में अभी ज्यादा अंतर नहीं रह गया है. नाली की कंडीशन भी वैसी है और तालाब की कंडीशन भी वैसी है. तो और दोनों को समझा जाता है, सो कॉल्ड एक तरीके से समझा जाता है कि कथित रूप में कि ये अनपढ़ लोगों का काम है और छोटी जात के लोगों का काम है ना. बट और वही हमारे साथ भी प्रॉब्लम था कि इंजीनियर होके आप ये काम क्यों करते हैं, ये नाली साफ करना, तालाब साफ करना, आई मीन वो है. बट आई डोंट बिलीव इन इट. और अगर हम देखिए, अगर हमारे बच्चे हैं तो हम उसको इंजीनियर, डॉक्टर या क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सस्टेनेबिलिटी है वहां पे, उनके लिए फ्यूचर सिक्योरिटी हम देखते हैं. सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम फ्यूचर सिक्योरिटी उनकी देखें फाइनेंशियल रूप से. हम जब बच्चे को एडमिशन कोर्स में दिलाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्यूचर में किस में ज्यादा सैलरी होगी. लेकिन इसीलिए अगर हम इंजीनियर्स को या हम यूथ को इसके लिए हम फाइनेंशियल उनको सिक्योर्ड दे दें या उनकी लाइफ को थोड़ा सस्टेनेबल बना दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इंजीनियर बनने से ज्यादा एनवायरमेंटलिस्ट बनेंगे. क्योंकि सबसे पहले अपना घर चलाना होता है सभी. तो हम इसलिए हम जब भी हम अपने गांव जाएं, तालाबों पे विजिट करें और चेक करें कि कौन इस तरह के काम कर रहा है और उसको हम सपोर्ट करें. थैंक यू. Thank you, Paul. Thank you, Ramveer. Thank you so much. All participants also who attended this event, a big thank you from MPF.
Thank you so much, everyone. And we will end this event now. We request all of you. I have shared the links in the chat box. Please check out the links. If you have not yet registered, register on MPF. Also send this to your family and friends so they can join our initiative to bring experts and invite them. And if you have people who you think can be invited on this forum, feel free to do that. Check on this, join our community and invite people to speak, not only to hear, but to speak, so that we can really add value to this amazing community of professionals. Thank you so much. I would request the MC members to stay in. All the others, thank you so much for your time. And we will see you in a few days' time again with yet another amazing personality to speak about with his expertise and share. Thank you and wish you all a happy weekend. Thank you. Bye-bye. MC members, please stay. The rest of all others can please leave. Thank you.